Good morning students, myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now today we discuss for class 12th, continue my chapter number 3rd, matrices. Now today we discuss about exercise 3.3. Before it we already discussed about 3.1 and 3.2. Now exercise 3.3, in this exercise first we discuss the basic of and introduce transpose of a matrix. First, what is transpose? ट्रांसपोज दैट मीन्स ट्रांसफर. आपको एक चीज को दूसरी जगह आपको ले जाना है. दैट मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इन विच इंटरचेंज रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. For example, suppose one matrix is given A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Just interchange row to column and column to row. बात एक ही है. So 1, 2, 3, 1, 2, 3. These three elements are given in rows and in this matrix given in columns. Similarly 4, 5, 6 and 4, 5, 6. Transpose of matrix just denoted by A dash और AT. आप इसको A dash से भी डिनोट कर सकते हैं और AT से भी डिनोट कर सकते हैं. बट वी डिनोटेड जनरली A dash. A dash is the transpose of A. So it's a very simple. Any one matrix interchange in its transpose by interchanging rows to columns and columns to row. It is the definition of transpose of a matrix. Okay students, I think it is clear. Now next, some properties for transpose of a matrix. One is, suppose A dash whole dash transpose of transpose is equal to, again we get the matrix A. Same, suppose we find the transpose of this matrix, means this time 1, 2, 3 write in rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6 write in row, 4, 5, 6. So you get, and again we take the A. So A dash whole dash is equal to A, and Ka whole dash, where K is the any constant number, so is equal to Ka dash. Means suppose we write the any one matrix Ka. So what is Ka? Suppose A is 1, 2, 3, 4, 5, 6. K is the constant. So this K multiply by 2, this one, this one, this one, this one, this one, this one. And what is it transpose? Ka whole dash means interchange K1 and K4 and K2 and K5, K3 and K6. Take the K is the common. So what is the answer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And what is 1, 2, 3 and 4, 5, 6? It is the A dash. That means this Ka whole dash is equal to Ka dash. We can easily, you can write. Okay. Next, it is the first property for transpose. Next, A plus B whole dash is equal to A dash plus B dash. Means sum of two matrix
and we get the another matrix and find the transpose of result is equal to separately A dash plus B dash. Also you can prove, you take the any two matrix A and B. It's very simple. A B whole dash, it is the very important, it is the product. Take the two matrices A B and find the product of A and B first, and then find, first we get the product of AB, that is the one matrix, and find the its transpose, and also separately find the A dash and B dash, and then find the product of B dash into A dash. So you find out AB whole dash is just equal to B dash into A dash. This is also you can prove. आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप प्रूव करेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू कैन आस्क. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पार्ट वेरी इंटरेस्टिंग. सिमेट्रिक matrices. What is the symmetric matrix? First is the definition. A square matrix, that means it is the condition for symmetric. एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नो. A square matrix A is equal to Aij, I into J is its order, said to be symmetric if A dash is equal to again A. If suppose one matrix and its transpose both are equal, then such a matrix are called symmetric. Now for example, A equal to 1 4 5 4 2 7 5 7 3. Now what is A dash? A dash equal to 1 4 5 1 4 5 4 2 7 4 2 7 5 7 3 5 7 3. मैंने क्या किया? Column to row. Just we change column to rows. Now check it. Both are the same. मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज राइट द एनी मैट्रिक्स A and also you can find its symmetric. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी सेम हो, क्या हम खुद उसको फॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इज वेरी सिंपल. करना क्या है? सपोज यू टेक द स्क्वायर मैट्रिक्स 3 into 3, ऑर्डर इज 3 into 3. तो आप क्या करेंगे? 1 2 3. टेक द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स. फर्स्ट राइट द इज डायगोनल मैट्रिक्स. आपको डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है 1 2 3. नेक्स्ट, अब आप यहां दो एलिमेंट लिखेंगे. सपोज वी राइट द 4 and 5. जो पहले हमने क्या किया? राइट दिस वन. यू टेक द एनी 3 एलिमेंट. ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, एनी 3. बट these 2 elements 4 5 जो यहां लिखे हैं वही आपको यहां लिखने हैं. this 4 5 and this 4 5 both are same. अब बचता क्या है? 1 element, this one and this one. ये दोनों सेम लेने हैं. सपोज वी राइट इज द -4, राइट इज आल्सो इट -4. नाउ फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज. हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने जा रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? रो टू कॉलम. मैं फर्स्ट वी राइट द रो टू कॉलम्स. अगेन 3 into 3. फर्स्ट रो, राइट द रो 1 4 5. मैं लिख रहा हूं कॉलम्स में 1 4 5 1 4 5. सेकेंड रो 4 2 -4 4 2 -4. थर्ड रो 5 -4 3 5 -4 3. नाउ चेक इट. क्या ये सेम है? 1 4 5 1 4 5 4 2 -4 4 2 -4 5 -4 3 5 -4 3. या इज करेक्ट. तो क्या देखा अपन ने? हम किसी भी एक मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को सेम करने के लिए हम एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं इजीली. मैंने आपको एक मेथड बताया.
पहले आप क्या करेंगे, डायग्नोस जो एलिमेंट्स है वो आप खुद लिखेंगे अपनी मर्जी से, फिर जो 2 एलिमेंट्स ये बचते हैं वही 2 एलिमेंट आपको यहाँ लिखने हैं रो और कॉलम्स के लिए सेम करने के लिए। एक सिंगल जो एलिमेंट बच जाता है उसको भी आपको सेम करना है। दिस -4 एंड दिस -4 आर आल्सो सेम। अगर ऐसा करते हैं तो आप इसका ट्रांसपोज जब फाइंड आउट करेंगे तो वो भी सेम होगा। तो फाइनली this A and A dash both are equal, means A dash is equal to A. Such a matrix is called symmetric. It is the symmetric. अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू, what is the difference between them? Now is skew symmetrics mean, that means this time it is the also symmetric, but just you take the negative. A square matrix, also square matrix, is said to be skew matrix if A dash is equal to -A. A के इक्वल तो है लेकिन -A. This time A dash is equal to -A. That means it is skew matrix. इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज वी राइट A इक्वल टू, अब यहां आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, फॉर स्क्यू मैट्रिक्स इस डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। आप चेक करके देखिएगा कि स्क्यू मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स पॉसिबल होगी कि इस डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। इट इज द प्रॉपर्टी फॉर स्क्यू मैट्रिक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर स्क्यू मैट्रिक्स। For any symmetric matrix is its diagonal elements are always 0 0 0 0. So we write the first 0. Next, suppose we write here 3 and 4 and also write here 3 and 4 but change the sign. अगर यहाँ 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव ले लीजिए। नेक्स्ट वन एलिमेंट जो बचता है यहाँ पे, सपोज यू टेक द -5 तो यू टेक द +5। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ 5 ले लीजिए और यहाँ 5 है तो -5 ले लीजिए। सिमिलरली सपोज यू टेक दैट इट इज द -3 तो यहाँ +3 है। कहने का मीनिंग मेरा क्या है, जो नंबर यहाँ लिए न्यूमेरिकल वैल्यू वही लेना है लेकिन इनके साइन चेंज करके लिखना है। इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव लेना और ये अगर पॉजिटिव होता तो मैं ये नेगेटिव लेता। अब आप ध्यान दीजिए, मैं A डैश फाइंड आउट कर रहा हूँ। First we change the row to column. Row first 0, 3 and 4. Okay? -3, 0 and -5. -4, 5 and 0. Take the minus is common. मैंने माइनस कॉमन लिया, इसीलिए इस एलिमेंट को हमने 0 रखा। 0 प्रॉपर्टी है तभी ये स्क्यू बनेगा, अदरवाइज स्क्यू मैट्रिक्स बनेगा ही नहीं। माइनस कॉमन लेते ही 0, इट इज द पॉजिटिव, इट इज द पॉजिटिव। -3 क्योंकि माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव लेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। 0 एज इट इज द -5, इट इज द -4, इट इज द +5 एंड इट इज द 0। अब आप ध्यान से देखिए, These two are equal. चेक करते हैं 0 3 4 0 3 4, -3 0 -5 -3 0 -5 -4 5 0 -5 -4 5 0. That means finally मैं ये कहना चाहूंगा A dash is just equal to -A. That is called skew सिमेट्रिक। ये तो अपन ने बात कर ली है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज की बात होगी और सिमेट्रिक की बात होगी और स्क्यू सिमेट्रिक की बात होगी। और नेक्स्ट अभी जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं ये इसी की बेसिस पे हैं। सिमेट्रिक मैंने आपको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हम इसको रब करते हैं और इसके साथ में कुछ थ्योरम्स हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो हैं वो और सेकंड, देयर आर 2 थ्योरम्स आर गिवन, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स यूज एज ए प्रॉपर्टी एंड यूज इन द क्वेश्चंस।
जो हम करते हुए आ रहे हैं जनरली। फर्स्ट थ्योरम आप देखिएगा बुक में गिवन है, इज वेरी सिंपल। सेकंड थ्योरम, द क्वेश्चन इज गिवन इन द बेस्ड ऑन सेकंड थ्योरम, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको करवाना चाहूँगा, एक सम जो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए मैं सेकंड थ्योरम को डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द सेकंड थ्योरम? सपोज एनी वन मैट्रिक्स A इज गिवन, थ्योरम नंबर इज 2 according to your NCERT book. What is A? A equal to half A plus A dash plus half A minus A dash। क्या देखा हमने? इन दोनों का सम वापस किसके इक्वल आ रहा है? A के इक्वल। दिस थ्योरम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वैसे अगर आप ध्यान से देखें, लेकिन यहां हमें प्रूव करना है, find the its transpose and then multiply to the by the half। पर यहाँ अगर देखें तो we take the half is the common, a plus a dash plus a minus a dash। सर आप कहोगे सर ये तो a dash cancel, a plus a 2 and 2 cancel, then finally we get the a। देखा जाए तो ये वैसे ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर सम क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि राइट द वन मैट्रिक्स, सपोज वन मैट्रिक्स इज गिवन एंड राइट दिस मैट्रिक्स एज ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सम्स, इट इज द सिमेट्रिक्स एंड इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हमें एक मैट्रिक्स को किस में चेंज करना है? इसी के सम में। किसके सम में? सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। अब ये कैसे चेंज करते हैं? सपोज वन टेक द वन एग्जांपल, मैं आप ही की बुक का एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बुक में आराम से आप देख भी सकते हैं। एग्जांपल नंबर 22। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 22 is given, one matrix is B is equal to 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 and 4 and 1 minus 2 and minus 3. This matrix write as the sum of symmetric and a skew symmetric। इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब मुझे इसको किसकी फॉर्म में चेंज करना है? मुझे इसको चेंज करना है इस फॉर्म में, हाफ b प्लस बी डैश प्लस हाफ b माइनस बी डैश। तो फाइनली मुझे फाइंड क्या करना होगा? b तो आपको गिवन ही है नंबर 1, अब मुझे b डैश फाइंड करना है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, b डैश। व्हाट इज b डैश? b डैश मींस इट्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इज 2 minus 2 minus 4 -1 3 एंड 4। थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। 1 -2 एंड -3 दोनों आपके पास आ गए। हाफ से आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले हमें क्या करना, बी एन प्लस बी डैश। तो फर्स्ट फाइंड आउट बी प्लस बी डैश इज इक्वल टू, हाफ में बाद में लूंगा, फर्स्ट वी फाइंड आउट बी प्लस बी डैश। मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, देखो बी प्लस बी डैश 2 + 2 4। अब पहले लिख लेना, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, -2 + -1 -3, ध्यान रखते हुए, -4 + 1 -3, -1 and -2 -3, ओके। एंड ये सही लिखा मैंने, गलत हो जाए तो देख लेना। 3 + 3 6, 4 - 2 2, लास्ट 1 - 4 -3, and -2 and 4 + 2, and -3 and -3 -6। हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4/2 2 -3/2 -3/2 -3/2 6/2 3 and 2/2 is 1 and
-3/2 and 2/2 is 1 and -6/2 means -3. ये आपने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट. नेक्स्ट, हाफ एंड b माइनस b डैश. अब ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, इस बार माइनस बी डैश मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए. तो एक काम करते हैं, इसमें माइनस अगर अपन लेते हैं तो पहले अपन प्लस करके उसको माइनस ही कर देते हैं. तो यहाँ हम b प्लस बी डैश हम ऑलरेडी माइनस फाइंड आउट कर चुके हैं. अब माइनस बी डैश लेना है अगर अपन को, तो b प्लस हमने बी डैश किया था और ये माइनस बी डैश करना है. तो पहले अपन माइनस बी डैश ले लेते हैं. माइनस बी डैश का मतलब ये हुआ कि मैं यहीं फाइंड आउट कर लेता हूँ. माइनस बी डैश इज इक्वल टू -2 एंड +1 -1 +2 and -3 and +2 and +4 and -4 and +3. ये ध्यान रखना. नंबर टू यहाँ हम यूज करेंगे. माइनस बी डैश आ गया. अब मुझे फाइनली करना क्या है, दिस वन एंड दिस वन प्लस करना है फाइनली, और कुछ भी चेंजेस नहीं है. 2 - 2 0. देखो 0 आ रहा है क्योंकि ये स्क्यू बन रहा है. तो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है. -2 + 1 -1. ध्यान रखते जाइए, 1 और 2 के साथ चल रहे हैं. पहले हम इसके साथ चल रहे थे. -4 and -1. फोकस रखना आपको और कुछ नहीं करना है. -5 -1 and 2 1 3 and -3 0. Very good. 4 and +2 means 6. 1 + 4 5. -2 and -4 -6. and -3 and +3 0. डायगोनल एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो गए. और अब मुझे करना है फाइनली दिस नंबर. अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 0/2 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 and 0 and now it is the b. फाइनली मुझे करना है इन दोनों को सम की फॉर्म में. हमें करना दिस मैट्रिक्स राइट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इट्स स्क्यू सिमेट्रिक. तो करना क्या, ए और बी को मैं प्लस करने जा रहा हूं. ए प्लस बी इज इक्वल टू, इनका सम अगर ए के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब समझो आपने बिल्कुल करेक्ट किया है. तो ए इज दिस वन होल, बी इज दिस वन होल. तो चलिए ए प्लस बी करते हैं, स्टार्ट करते हैं. ए प्लस बी, ए मेरा ये है, बी अपना ये है. तो कोई स्टार्ट करते हैं. 2 + 0 2. This and this, -3 and -1 is 4, 4/2 is -2, and this 2 is the LCM. -3 and -5 is 8 and it is the -4. -3/2 and +1/2. तो ये आपके पास आएगा 2/2 यानी कि -1. 3 and +0 3 and 1 and +3 is 4. -3/2 + 5/2 फाइनली ये आपको मिलेगा 5 और -3 मतलब आपको मिलेगा ये 5 और -3 हो जाएगा 2. 2/2 हो जाएगा -1. 1 और -3 -2 and -3 and +0 is -3. अब चेक ये करना है क्या ये a के इक्वल है. देखते हैं. सॉरी, नॉट ए और बी के इक्वल आना चाहिए था. हाँ बी. अब बी अपना क्या है, ये रहा. 2 - 2 -4 2 - 2 -4 -1 3 4 -1 3 4. वेरी गुड. 1 - 2 -3 1. और यहाँ पर हमने कहीं कुछ दिस वन एंड दिस वन 2 LCM -3 and 5 प्लस आएगा. ये प्लस 2/2 is +1 and 1 and -3 is the -2 and 1 and -3 means -2 is correct.
-3 + 0 -3, एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, +1 -2 -3, बिल्कुल करेक्ट है, इट इज इक्वल टू बी, इट इज प्रूव्ड एंड करेक्ट आंसर। तो मैंने एक क्वेश्चन करके बता दिया लास्ट, ये एक्सरसाइज आप इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3, आज हमने एक्सरसाइज 3.3 कर ली है कंप्लीट। मैट्रिसेस में हम एक एक एक्सरसाइज के साथ चलेंगे। 1 हमने किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड डे। और कोई भी डाउट्स हो तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम। ओके स्टूडेंट, बाय।